I really want to know about the play therapy. This is actually we are following, but in outside India, it is very common. Okay. But in India, it is a Hmm. little new. Hi, Hi Shruti. Archana. Hi. So tell me more about yourself. पहले क्या करते थे and अब आप इसमें play therapy में कैसे आए? 7-8 years corporate में रहा. उसके बाद Okay. I did Right. masters in psychology, but still I was in corporate field. When I started Okay. exploring, I did this child psychology and masters in that. And then I came to know about this play therapy thing, which kind of relates with my lifestyle. Because after having baby, मेरा जो lifestyle था वो change हो रहा था. So I could relate Right. that thing. Tell me first the basic, very basic question. What exactly the play therapy is? Play therapy is nothing but like coding and decoding. So we are Okay. decoding the language of children through play. Like we Okay. both are talking, we both are having conversations and sharing our ideas which are in our mind, right? But and we can Hmm. easily understand our languages, right? But we can't do the same thing with kids. We can't have conversation and discuss everything, and we can know their thoughts, how their feelings are. They can't express because their Yeah. brain is not enough matured to handle the conversations and the words, right? So we do Hmm. what they the natural language is play. So वो खेलेंगे and we can understand according. So play therapy works like कि जब वो लोग खेलते हैं we need to decode their play. तो किसी भी and it is not specified कि आपको इससे खेलना है ऐसा खेलना है. It is just simply the जैसे भी बच्चा खेलना चाहता है खेल रहा है and we लाइक उसको कोई understand. भी इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल उसको अगर सिंपली बिना टॉय के भी खेलना है एंड ही इज प्रिटेंडिंग दैट ही इज प्लेइंग विद समथिंग तो देन इट इज आल्सो ओके Yes, it is ही also कैन डू fine. दैट Yes, yes, yes. और या एज अ पेरेंट आवर जॉब इज टू decode this play language so we can interact with them as well Correct. so they can continue with it yeah. Right, right, right. So the play therapist what do is to decoding things. What parents do is a different role. इधर play therapist का रोल बाद में आता है. तो Hmm. फर्स्ट रोल होता है इनिशियल हमारे घर में. So we should allow our children to play. However the Right. play but बस सिंपली एक बाउंड्रीज रखते हैं ना कि वो उनको खुद को हर्ट ना हो जाए या फिर किसी चीज को नुकसान ना हो बस उतना एक लिमिट रखना चाहिए rather than saying no a big no कि नहीं इससे नहीं खेलना है वैसे नहीं खेलना है या कोई एक जैसे आपने कार दे दी है तो you have to play like this only so we should not give हाँ. them the instructions or the rules कि you have Yeah, to we play like should this. like give them toys and let them explore how can they Yes, means they can generate new ideas to play with the correct, toys whatever they have right. right. Yeah, I see. अच्छा मैं अच्छी आपने चीज बताई मतलब when my kid was very like 1.5 or something उस टाइम पे ये होता था you know how great grandparents and Mhm. relatives are तो उनको ये है कि अगर लाइन सीधी खिंच रही है तो they had to play means draw the line like that only Correct, उसको correct, वैसे ही करना है तो वो हर चीज में करेक्शन करेक्शन एंड माय लिटिल वन ना गॉट इरिटेटेड दैट टाइम right. कि मुझे हर चीज क्योंकि यहाँ पे जनरली वी माय हस्बैंड एंड आई नेवर इंटरफेयर तो Hmm. व्हेन बच्चे को जब ये इंटरफेरेंस नहीं मिलता है वो सडनली उसको हर चीज में बार बार कुछ ना कुछ पोकिंग Correct, होती है देन वो बच्चा इरिटेट हो जाता है तो वो मैंने अपने बेबी में उस टाइम पे देखा था right, right. so my next question to you what if my kid doesn't play and play much and will therapy benefit for him or her हाँ. हाँ ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्योंकि अब की जनरेशन जो है वो तो नहीं हमारा बच्चा खेलता नहीं है ही वांट्स टू लव टेलीविजन या फिर कुछ कंप्यूटर में कुछ करता है या गेम्स खेलता है वीडियो गेम्स या ऐसे कुछ खेलता है बिकॉज डिजिटली वो ज्यादा एक्टिव है या मशीन भी ऐसा कुछ एक्टिव है बट ही डोंट लाइक टू प्ले दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन नाउ डेज बट पता है क्या होता है ना वी ऑल नो दैट वी ऑल नीड्स टू टॉक वी कांट Right. स्टे क्वाइट वी कांट स्टे एंड इफ वी आर स्टेइंग क्वाइट देयर इज समथिंग रॉन्ग अगर मैं कहूँ कि मुझे बात ही नहीं करनी है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर इज नॉट एवरीथिंग इज ऑलराइट तो बच्चा Hmm. नहीं करता है इज अ थिंग कि अभी नहीं करता है बट Hmm. इट डजंट मीन कि वो नहीं खेलेगा या नहीं खेलना चाहता अगर आप उसको अपॉर्चुनिटीज दो या उसको ऐसा एक एनवायरमेंट या एक ऐसा रूम है जहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं खेलने के लिए ठीक है Hmm. तो उसके अंदर वो क्या करेगा अपना इंटरेस्ट लेगा जैसे कि अभी हाँ. प्ले सेटअप होता है उसके अंदर में बहुत सारी चीजें होती हैं एंड वो एज स्पेसिफिक नहीं होता है लाइक अच्छा. जैसे आप उसमें 2 से 3 साल से बच्चा भी उसमें खेलना शुरू कर देता है एंड 10 12 13 साल तक का बच्चा भी उसके अंदर में इन्वॉल्व अपने आप को कर सकता है बहुत आराम से कर सकता है लाइक अब हमारे प्ले थेरेपी अगर एक रूम सेटअप में करती हूँ तो उसके अंदर में क्या होगा Hmm. बॉल्स होते हैं सेंसरी चीजें होती हैं टॉयज होते हैं तो ये सब यूटेंसिल्स होते हैं हमारे जो नॉर्मल किचन के वैसे यूटेंसिल्स हो सकते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं खेलने के लिए और उसके अलावा सैंड प्ले जो अभी एक बहुत चलता है बहुत ज्यादा वर्क करता है बच्चों के साथ में राइट मेरे बेटे का तो फेवरेट है सैंड प्ले उसको मतलब बिकॉज लास्ट टाइम आई व्हेन आई हैव गिवन हिम ना तो लाइक 40-45 मिनट्स उसने अच्छे से खेला आई नो इट्स वेरी मेसी थोड़ा पूरा रूम गंदा हो करेक्ट जाता है करेक्ट पूरा वो खुद भी गंदा हो जाता है बट मुझे लगता है एटलीस्ट वो थोड़ी देर अपने में बिजी है एंड आई एम गेटिंग माई टाइम तो राइट बाकी काम करने के लिए डिनर प्रिपेयर करने के लिए तो यूजुअली आई गिव हिम दिस काइंड ऑफ प्ले ना इन इवनिंग
so that I can do my dinner prep and he enjoy himself if there is no one to play with him. तो ये करेक्ट चीजें, दो करेक्ट। चीजें हैं, sand play and water play, he loves very हाँ, much. राइट राइट, ये मतलब ये मेरे बच्चे के साथ में भी है सैंड प्ले, क्योंकि मैं खुद बिकॉज उसका एक स्पेसिफिक रूम नहीं हो पाया तो हमने सैंड को अभी तक अवॉइड कर रखा है, बिकॉज वो सारी जगह स्कैटर हो जाएगा। अगर एक स्पेसिफिक रूम या स्पेसिफिक एरिया है तो इट्स गुड, बट तो मेसी सैंड का ना मैंने उसको घर का ही, जैसे आटे और जो नहीं आटे का, व्हीट करेक्ट फ्लावर होता है करेक्ट एंड करेक्ट कोकोआ पाउडर मिक्स करके, वो वाला मैं सैंड उसे देती हूँ राइट राइट। करने के लिए। जैसे वो हाँ बाहर वाला तो ऑब्वियसली मेरे पास भी ऐसी करेक्ट अवेलेबिलिटी नहीं है कि हाँ करेक्ट। वो मैं दे दूँ, बट हाँ वो बट वाला हाँ मैं एंजॉय मैं करता है। यही मैं भी करती हूँ, मेरे को भी घर से में प्ले डो बनाना, स्लाइम बनाना, सो ये जो घर में आप बना करके देते हो ना, सो दे रियली इंजॉयज। उसके अलावा क्या होता हाँ है ना, इट रियली हेल्प्स देम टू कनेक्ट विद द नेचर। वो खुद को करेक्ट। कनेक्ट कर पाते हैं, ओके अच्छा ठीक है इसको ऐसे यूज करना है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ हम्म क्वेश्चंस कमिंग अप कि यार ये तो बहुत मेसी हो जाता है ना, इससे तो बच्चा हम्म सारी चीजें फैलाने लग जाएगा, करेक्ट। इनडिसिप्लिन हो जाएगा, वो ऐसा नहीं करेगा वैसा नहीं करेगा, बट यू नो व्हाट, दे आर एक्सप्लोरिंग। बिकॉज हम यस। लोग हम लोग बड़े हो गए हैं, मेच्योर्ड हो गए हैं, हमारा ब्रेन है ना एकदम सिस्टमाइज हो गया है कि इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, बिकॉज हम लोगों ने दुनिया देख ली है, बोलते हैं ना जैसे कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। बट बच्चों के लिए ऐसा कुछ नॉर्म्स नहीं है, उनको पता ही हम्म नहीं क्या करना है, सो दे उसको एक्सप्लोर कैसे करते हैं ना, वो टेक्सचर से करते हैं, हाथ से करेंगे, स्मेल करेंगे, टेस्ट करेंगे, और हम बोलते हैं ये है ना मुंह में ले लेगा, बिकॉज वो एक बार टेस्ट करेगा उसको पता चलेगा, उन सब सेंसेस से वो उसको समझने की कोशिश कर रहा है समझ में कि राइट। हम लोग सेंसरी बॉटल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, can play therapy be initiated at home? When does a play therapy means when does a play therapist come into a picture? तो क्या होता है ना, प्ले थेरेपी शुड ऑलवेज स्टार्ट स्टार्ट एट होम। ठीक है, हम्म हमेशा घर से ही स्टार्ट होना चाहिए। प्ले थेरेपिस्ट का रोल क्या होता है ना इसके अंदर में, व्हेन द केस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू हैंडल दिस, सो ओके। थेरेपिस्ट इज समथिंग लाइक ऑफ मेडिकल थिंग्स। ठीक है, बिकॉज थेरेपिस्ट का रोल तब आता है जब बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं एंड इट इज नॉट हम्म एबल टू, पेरेंट्स आर नॉट एबल टू हेल्प देम। और हम्म कह लो कि अगर पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इमोशनली बच्चा अकेले सफर कर रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू कोप अप, वो अपने घर पे वो तो चीज को कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा, तो प्ले थेरेपिस्ट ये हेल्प वाली करते सिचुएशन बच्चे के साथ कब आती है? ये हैं। बहुत वाली सारे केसेस में सिचुएशन? आते हैं, लाइक अच्छा लाइक। बुलिंग केसेस होता है स्कूल्स में हो गया, या फिर आप अपने जब भी बच्चा अपने घर से भी बाहर निकल रहा है, स्कूल्स में हो गया, खेलने में ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं, बुलिंग होता है, एंड बुलिंग इज अ थिंग वेरी कॉमन एंड किड्स आर नॉट शेयरिंग दिस थिंग एट होम। ठीक है, विद बिकॉज उनको लगता है पेरेंट्स, कि यार यस। हमारे पेरेंट्स दे आर नॉट कंफर्टेबल टू शेयर विद, एंड इट हम्म स्लोली इम्पैक्ट्स देयर डे टू डे रूटीन। और तब आपको लगता है कि यार हम्म कुछ तो मिसिंग हो रहा है हमारे बच्चे के साथ में, ऐसा नहीं था। ठीक है, तब हम्म आपको ये चीज नहीं पता चलेगा कि ये बुलिंग वाली चीज इसको इतना हिट करेगी, या कभी किसी की कोई ऐसी बातें जो बच्चे को डिमोटिवेट कर रही है, बिकॉज राइट। लाइक अभी के जो बच्चे होते हैं, अभी के नहीं हम लोगों के टाइम में भी, बट जो बच्चे होते हैं ना, हम जो भी उनको वर्ड्स कहते हैं वो उनके मन में रहती है, सो वी शुड बी अवेयर एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स वी यूज विद द किड्स। सो अगर आप कोई हम्म ऐसा है घर में या बाहर या स्कूल में तो बच्चे के साथ में ऐसा कुछ वर्ड्स यूज हो रहा है कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, या ऐसे हो आप वैसे हो, हम्म तो दैट्स वेयर हाँ बच्चा कनेक्शन में विद रह जाता पेरेंट्स। हाँ यहीं पे मतलब पेरेंट्स के साथ बच्चा कितना कनेक्टेड है वो बात आती है, राइट? है, करेक्ट करेक्ट, So पेरेंट्स के if साथ भी the कितना if कनेक्टेड the है। kids are connected to parents, so they can come and tell the parents. And Correct. अगर आपके साथ बच्चे का कनेक्शन ही नहीं है तो बच्चा हम्म। ऑब्वियसली अवॉइड करता है एंड एक अलग जोन में और चला कभी जाता है, एक और राइट? चीज भी होता है पता है श्रुति, कभी है ना हम लोग जैसे कनेक्शन कभी होता है कि ज्यादा कनेक्शन है, सो दे डोंट वांट कि हम्म पेरेंट्स कभी हर्ट हो जाए या वो उनको टेंशन ना हो जाए, मैं खुद से हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी, राइट, अच्छा ये क्योंकि भी होता है। बच्चे बच्चे क्या होते हैं ओके। ना, एक टाइम जैसे आज की जनरेशन में जो बच्चे हैं वो जल्दी मेच्योर हो रहे हैं, दे वांट टू करेक्ट। टेक थिंग्स बाय देयर ओन, रिस्पांसिबिलिटीज मैं ले लूंगा इमोशनली, मेरी मम्मा को हर्ट ना हो जाए, मेरे पापा को हर्ट ना हो जाए, वो लोग ज्यादा हम्म परेशान ना हो जाए, आई कुड हैंडल इट बाय माई सेल्फ। बट एक लिमिट हो जाती है कि वो हम्म लोग हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, ठीक है, तो फिर वहां पर प्ले थेरेपिस्ट आ जाता है। अच्छा, एंड ये टेंट्रम्स हमारी छोटी एज में तो बहुत ज्यादा है, टेंट्रम्स बहुत ज्यादा है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, और मील टाइम का इशू बहुत ज्यादा है, तो ये तो बहुत छोटी छोटी और बहुत कॉमन चीजें हैं जिसको अगर हम पेरेंट्स मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और ये ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ गई तो टेंट्रम कॉमन है, टेंट्रम्स कोई इशू हम्म नहीं, बट टेंट्रम्स हाँ अगर कोई इशू इतनी, नहीं है। राइट, टेंट्रम्स अगर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बच्चा खुद को हर्ट करने लग गया है, लाइक हिटिंग ऑन वॉल या स्क्रैचिंग हम्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया है, तो वो एक रेड फ्लैग है कि यू शुड कंसल्ट थेरेपिस्ट। अदरवाइज प्ले थेरेपी आपके घर पे ही स्टार्ट होती है, बट जब आपको ये रेड सिग्नल मिल जाता है कि यार नहीं अब किसी को आने की जरूरत है, देन प्ले थेरेपिस्ट का। तो ये मतलब जैसे आप बता रहे हो ये बुलिंग वाला सीन, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब ये तो बड़े बच्चों में ज्यादा होता है ना। तो प्ले थेरेपी कौन करेक्ट, किस एज तक के बच्चों के लिए होता है? प्ले थेरेपी की एज लिमिट मैं वही जैसे कह रही हूँ कि 12 13 14 15, मतलब जब तक भी प्ले आपके अच्छा। जैसे इवन हमारे लिए भी प्ले थेरेपी काम कर जाएगी, इट्स नॉट अबाउट ओके। स्पेसिफिक एज ग्रुप। प्ले थेरेपी तो एक ऐसी चीज है कि आप, अच्छा हम इट्स सब भी नॉट खेल सकते हैं। पर्टिकुलरली टू किड्स एज करेक्ट वेल, मतलब करेक्ट, इट्स नॉट पर्टिकुलर टू किड्स, अडल्ट्स के लिए भी दिस कैन राइट वर्क। राइट, बट हाँ जैसे कि अच्छा। वही मतलब प्ले बदल जाता है, प्ले के स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं, जैसे कि ये जो सैंड थेरेपी है, आपको पता है सैंड हम्म थेरेपी अभी हम लोग बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, बट सैंड थेरेपी और इसका इतना बड़ा, सैंड थेरेपिस्ट भी एक अपने आप में एक वो डिग्री हो गई है,
बाहर की कंट्रीज में, अच्छा। बिकॉज साइंस थेरेपी एक ऐसी चीज है जिसको बड़े लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, बड़े लोगों के उसमें भी वो आ रहा है कि आपको, अगर आप अडल्ट लोग हैं, अडल्ट लोगों में भी कुछ इमोशनल इश्यूज हैं, वो लोग कुछ है, इनर थिंग्स हैं जो आप नहीं एक्सप्रेस कर पाए हो, कुछ इनर हम्म, फीलिंग्स है, कुछ पास्ट की कुछ चीजें हैं, बचपन के कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, दैट कुड बी हील्ड विद दिस सैंड थेरेपी थिंग। तो इसलिए हम लोगों में कोई okay, ऐसा एज स्पेसिफिक ऐसा कुछ चीजें नहीं रहता मोस्टली। बट येस, हाँ, हम्म, अगर हम स्पेसिफिक चिल्ड्रन की बात करें तो 12 to 15 ईयर्स हम लोग एज रखते हैं, ये टिल दिस एज इट हेल्प्स विद द चिल्ड्रन। next question for you. How does play therapy work for my kid, help my kid? करेक्ट, प्ले थेरेपी डिपेंड, आपके घर पे कर रहे हो या प्ले थेरेपिस्ट के पास कर रहे हो, ठीक है। घर पे तो आपको जैसे हम्म, पता है कि आप अपने साथ में बच्चों के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हो खेलने के लिए, और जब हम्म, तक आपको लगता है कि बच्चा सही है, सब ठीक है, दैट्स गुड, बच्चा एंजॉय कर रहा है। प्ले थेरेपिस्ट का हम्म, रोल आ रहा है जब बच्चे में कुछ इश्यूज आपको लग रहे हैं तो ओवरकम, ठीक है। हम्म, अब इसमें हम्म, बच्चे को प्ले थेरेपिस्ट कैसे हेल्प करता है, क्वेरी वहां पर आती हम्म, है। सो इट्स लाइक आप okay, रीच आउट कर रहे हो प्ले थेरेपिस्ट को क्योंकि कुछ तो इशू आपको लग रहा है। फिर प्ले हम्म, थेरेपिस्ट इसमें क्या करता है ना, सबसे पहले तो उसके साथ में एक रेपो बिल्ड करता है। जैसे हम एक डॉक्टर के okay, पास में बच्चा जाता है तो हम बोलते हैं कि यार आपको फीवर है इसलिए आपको डॉक्टर के पास ले गए हैं, या कोई चोट लग गई है इसलिए आपको डॉक्टर के पास ले गए हैं, ताकि बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाए, अच्छा ठीक है मुझे इस चीज सही करेंगे। सेम ऐसे जब आप प्ले थेरेपिस्ट के पास जाते हो तो आपको या हम लोगों को बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हो, ताकि बच्चे के मन में एक ऐसा चीज नहीं है कि यार मेरे में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कि मुझे यहाँ लेकर के आए हैं। हाँ, ये एक बहुत राइट, बड़ा इश्यू होता है क्योंकि बच्चे में वो एक होता है ना, एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, ये नेगेटिव वर्ड्स आ जाता है कि यार यहाँ क्यों मैं, मेरे बाकी दोस्तों नहीं या, आते इस जगह पर, ठीक है। तो बस ये है कि कुछ नहीं, आप ठीक हो, बट आपके इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए, आपके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप में कॉन्फिडेंस आने के लिए, या आपको और भी कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी आपके इमोशंस से रिलेटेड कुछ भी बात करनी है, ये एक फ्री स्पेस है। यहाँ पर जो आप हो ना, वैसे ही आप रहना, आपको वैसे ही वैसे आपको, एक्सेप्ट, आपको वैसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको कोई उधर करेक्ट नहीं करने वाला है, कोई आपको टोकेगा नहीं, कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई आपको लेबल नहीं करेगा। लेबलिंग इज अ राइट, थिंग विच इज वेरी कॉमन, यार ये बहुत लेजी है, ये बहुत टैंट्रम करती है, ये बहुत गुस्सा करता है, मतलब ये जो लेबलिंग है ना, ये क्या होता है ना, वो करे चाहे नहीं करे, ये लेबल मिलने से वो करने लग जाता है। करने आपको लग लगता जाता है है। हाँ, कि वो आई हैव रेड दिस समवेयर दैट लेबलिंग ना बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में हो जाती है। सो आई करे। कैन रिलेट टू दिस टू माई सेल्फ। बेसिकली अगर मैं कहूँ ना, मैं अपने आप से अब जो मैं पढ़ती हूँ या फिर मैं जो अब समझ रही हूँ चीजें, उसको आई कैन रिलेट टू माई सेल्फ। अपने चाइल्डहुड से मैं करेक्ट, बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ। मुझे करेक्ट, लगता है कि हाँ, जैसे छोटे में अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे भैया लोग थे, मामा के बेटे वगैरह, तो वो मुझे भले ही टीज करने के लिए, ऑब्वियसली ब्रदर्स हैं, टीजिंग वगैरह करते ही हैं, बट टीज करने के लिए भी जो बोलते हैं ना, आपके दिमाग में वही सेट हो जाता है। जाती है, अरे और आप कहीं ना कहीं उसको हाँ, एक्सेप्ट जैसे कर लेते हो। आप उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हो, यू डोंट नो दैट यू आर एक्सेप्टिंग दिस थिंग एंड करेक्ट, यू आर बिकमिंग लाइक दैट। तो करेक्ट, ये चीज आपने सही बोली तब, कि होता है ये करेक्ट। लेबलिंग वाला थिंग। अभी आपने थोड़ी देर पहले भी एक चीज बोला था कि यार बुलिंग तो थोड़े बड़े बच्चों के लिए होता है ना, इतने हाँ, छोटे बच्चे, हाँ, हाँ, बट बड़े बच्चों में हम नहीं सेग्रीगेट कर सकते, पता है। अगर अभी आपका 2 साल का, मेरा 2 साल का बच्चा भी है ना, मैं उसको भी अगर मैं मतलब हम्म, उसको भी कोई और बोलता है कि यार ये बहुत मोटा है या बहुत पतला है, हाँ, ट्रस्ट में 2 साल का बच्चा भी उसको ले लेगा उस ले बुलिंग, लेगा। बस उसको टर्म नहीं पता सही। है कि बुलिंग है, बट वो उसको ले लेगा हाँ, एंड वो कहीं ना उसको, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हाँ, उसके जाके वो सबकॉन्शियस माइंड सेटल में हो कुछ रहा है। इफेक्टिव है। वही हम लोग बोलते हैं ना, हम ये जो माइंड से भी ज्यादा, मतलब माइंड में जो सबकॉन्शियस माइंड जो चीज है ना, ये बच्चों की इतनी स्ट्रांग होती है ना, बिकॉज उनका जो हम्म, प्रैक्टिकल माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो बना नहीं है, उनको लॉजिक्स नहीं पता बना है, ही नहीं है। reason नहीं पता कैसे हुई। करेक्ट। अगर लेकिन अगर आप उनके सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग कर दोगे ना, मतलब उनके माइंड में आप जो बोलोगे ना, वो चीज को रियल मान लेंगे। रियल हो जाएगा, राइट। तो आप, वो है, आप कैसे उसको नर्चर करते हो, आप जो वर्ड्स बोलोगे उनका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही वर्क करेगा। Okay, so let's come to next question. What are after issues? What after the issues are identified, हम्म, and what are the next steps to take? करेक्ट। अब जैसे कि कोई पेरेंट आया है, उन्होंने बोला कि यार हमें को पता नहीं है, हमारे बच्चे के साथ कुछ तो इशू है, बट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। Hmm. देखना मतलब क्या Okay. है, ऐसा कुछ मतलब कुछ तो गड़बड़ लग रहा है बच्चे के साथ में, एंड Hmm. वो हमको नहीं शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो विद प्ले थेरेपी Hmm. थिंग, हम लोग सबसे पहले तो थोड़ा टाइम लगता है बच्चे को सेटल होने में, बच्चे को किसमें इंटरेस्ट है, तो हम लोग Hmm. कहते हैं कि एटलीस्ट 12 सेशंस तो लगते हैं बच्चे को एक बार सेटल होने। 12 डिपेंडिंग ऑन, sessions. अगर जैसे यंगर है, जितने यंगर है उतना एटलीस्ट 12 लगेगा, और थोड़े से एल्डर होते जाते हैं तो कंपैरेटिवली कम लगता है सेशंस, ठीक है, अच्छा। स्टार्टिंग एटलीस्ट एडजस्ट होने में, या फिर और ये जो थेरेपी। सेशंस है आपके, 12 सेशंस आप बता रहे हो, ये लाइक कितने कितने डेज के इंटरवल पे होते हैं? हाँ, ये क्या होता है, ये वीकली 1 डे होता है, 45 मिनट्स टू Hmm. 1। Hmm. और ये क्या डेज फिक्स होते हैं, अगर मैंने आज सैटरडे मैंने स्टार्ट किया है 12 to 1, तो मैं नेक्स्ट सैटरडे वापस 12 to 1 ही बच्चे का वापस सेशन रखूंगी। ये क्या होता है ना, ये टेक्निक तो होती है नेक्स्ट बच्चे की। सेशन जो है वो कितने दिन बाद होगा? करेक्ट, 1 वीक बाद में, नेक्स्ट सैटरडे 12 to 1, अच्छा, एवरी वीक एवरी वीक, सेशंस है? सेम डे सेम टाइम। ओके, सेम डे। अच्छा, सेम डे सेम टाइम होना भी जरूरी है, इट्स करेक्ट, इम्पोर्टेंट। करेक्ट, करेक्ट, मतलब ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है ना, ये 1 वीक का जो टाइम होता है ना, ये बच्चे को मिलना बहुत जरूरी होता है। जैसे मेरा उस बच्चे के साथ में कनेक्शन हुआ, हम लोगों ने एक सेशंस किया, कुछ खेला, कुछ बात किया, वो जो 1 आवर का जो भी कॉन्वर्सेशन और जो एक्टिविटीज होगी ना, वो उस टाइम करके चला जाएगा बच्चा घर पे, बट उस बच्चे के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चलती रहती है, फिर वो उसमें वर्क करता रहता है कि यार ये चीज हुई थी, इस पे ये काम करना है, ठीक है, खुद से ही उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने ये चीज करा था और मुझे इस चीज पे अप्रिसिएशन मिला था कि यार ये मैंने अच्छा किया है।
ठीक है। तो इट टेक्स अराउंड 1 वीक कि बच्चा उस एक्टिविटी पे काम करने लगता है, और 1 वीक बाद में हम उसको रिजल्ट देख सकते हैं, यार ये जो मैं अभी तक काम करवा रहे हैं हम लोग, इसका बच्चे पे क्या इम्पैक्ट है, कितना इम्पैक्ट है। तो एटलीस्ट 1 वीक का टाइम लगता है। अब बच्चे का क्या हो गया, जैसे कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ओके बुलिंग है या ऐसा कोई चीज है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, हमको जैसे हमने जैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि ओके ये एक केस है, या फिर घर में ही कुछ ऐसा घर में ही काइंड ऑफ बुलिंग हो रहा है, आप हमको पता नहीं चलता घर में भी बुलिंग हो जाती है, घर में बिकॉज हो हम लोग जाता रहेगा। हम लोग इंटेंशनली नहीं करते हैं, बट बच्चे के लिए वो चीजें ऐसी हो जाती है वर्ड्स कि ठीक है यार ये तो नहीं करता है काम, तो बच्चा उसको ले लेता है। तो अगर हमने जैसे उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, पेरेंट्स को और जो है ऐसे हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते हैं ज्यादातर ऐसी चीजों में। हम लोग बच्चे के साथ में ही वो एक रेपो बना के रखते हैं कि ये जो रूम में जो काम हो रहा है ना, जो भी हो रहा है, हम दोनों के बीच में है। आपको अगर अपने पेरेंट्स को डिस्कस करना है आप कर सकते हो बिल्कुल, हम लोग आपकी कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं करेंगे। तो उससे क्या होता है, बच्चे को एक ट्रस्ट रहता है कि ठीक है जो मैं यहाँ बोलूंगा वो मेरे घर में नहीं जाएगा या बाहर कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले तो हाँ, ट्रस्ट बनता है, क्योंकि मुझे ट्रस्ट बनता मेरे है। मुझे पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं बतानी है, मुझे पेरेंट्स को सॉल्यूशन बताना है कि बच्चा ठीक हो गया। ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, पेरेंट्स भी घबरा करके बच्चे को संभालने के चक्कर में बच्चे को घबराहट पास ऑन कर देते हैं कि यार अब ऐसा ना हाँ, हो, इसके चक्कर में ऐसे बचा के रखते हैं वैसे बचा के रखते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कई थेरेपिस्ट क्या करेगा ना, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाते हैं कि ठीक है बुलिंग हाँ। हुआ है ना, इसको आप कैसे हैंडल करोगे, इसको आप तो पॉजिटिवली आप कैसे कोई लोगे। एग्जांपल दे सकते हो कि मतलब अगर ऐसा कोई सिचुएशन बच्चे के साथ आ रहा है और पेरेंट्स को पता चल रहा है, तो वो अपने लेवल पे वो कैसे हैंडल करें इस सिचुएशन को? बच्चा कैसे हैंडल करेगा या पेरेंट्स कैसे हैंडल करेगा। बच्चा तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है। लेकिन वो जब आके पेरेंट को बताता है कि हाँ, मैं आपको अच्छा एक केस बताती हूँ, मेरे बेटे का ही है। हम लोग एक बार पार्क में गए, ठीक है, वहां पे थोड़े से बड़े बच्चे थे, ज्यादा बड़े भी नहीं थे, लेकिन उस बच्चे ने, मेरा बेटा वहीं साइड्स में खड़ा हुआ था, मैं भी वहीं खड़ी थी, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम। तो मैं वेट कर रही थी, और उस बच्चे ने, वो थोड़ा होते हैं कुछ बच्चे ज्यादा अग्रेसिव होते हैं या फिर ज्यादा नॉटी होते हैं मे बी, तो वो बच्चे ने बस ऐवे ही आके उसको थप्पड़ मार दिया, मेरे बेटे को स्लैप कर दिया। अब मेरे बेबी के साथ तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है, और उसके लिए वो बहुत पहली नई बात थी। तो इस करेक्ट। सिचुएशन में लाइक मुझे ही ऐसे क्या करना चाहिए कि मैं अपने बेटे को भी प्रोटेक्ट कर पाऊँ, और मतलब वो उस बच्चे को भी, मैं ऑब्वियसली उसे नहीं डांटना चाहूंगी कि क्यों मैं उसे डांटू, क्या है, बट उसको भी मैं कैसे, उसको भी हैंडल करूँ और अपने बेटे को भी प्रोटेक्ट करूँ, और मेरा बेटा उससे पॉजिटिव चीज सीखे, ये मैं कैसे करूंगी? ये बहुत सही चीज है, पता है क्या ना, बिकॉज इससे बच्चे बहुत सीखते हैं यार, हाँ, इंसिडेंट तो क्योंकि हो मैं गया। अपने बच्चे को ये तो नहीं कहूंगी ना, तुम भी जाके थप्पड़ मार के आओ, करेक्ट वो मैं करेक्ट नहीं करेक्ट। सिखाना चाहती, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो उस केस में कैसे, एज अ मदर, एज अ पेरेंट, हाउ कैन आई डील विद दिस सिचुएशन? इसमें ना क्या होता है कि एक तो सबसे पहली चीज कि बच्चे को आप क्या बच्चे के साथ हो, बच्चा अकेला फेस नहीं कर रहा। सबसे पहले क्या है ना, ओके जैसे आप उस टाइम पहुंच गए, यार ये गलत हो गया ना, ठीक है हम बात करते हैं, पता नहीं क्यों क्या क्या भैया को ऐसा क्या लगा होगा, एंड सामने के सामने बच्चे से बात कर सको, पॉसिबल जिस बच्चे के साथ में भी हो, क्या हो गया कॉन्वर्सेशन, क्योंकि अब क्योंकि बच्चा अगर थोड़ा सा और बड़ा है तो ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन कर सकता होगा, बात कर सकता होगा। आपको ऐसे मतलब सबसे पहले जब आप बच्चे से बिल्ड कर रहे हो ना बात, हमेशा उनके आई लेवल पे बैठना चाहिए कि बच्चा ट्रस्ट कर रहा है, और दूसरा उसको है ना कंफर्ट है कि सामने वाला है ना उसकी बातें समझेगा, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। जैसे मैंने बोला ना कि बच्चा चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो, आप जो हो जैसे हो, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। सॉल्व हो जैसे ही आपने जाते हैं। उस बच्चे को ले लिया एक बार अपने पास में, किया एक बार बैठो, आपने इनको हिट किया ना, आपने जैसे इतना एक प्यार से सवाल पूछा ना, आई कांटेक्ट बना करके, आधी प्रॉब्लम वहीं पर हो जाएगी कि सॉल्व। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मतलब कॉन्वर्सेशन बिल्ड करो, क्या हुआ। अब आगे बच्चा कुछ कहेगा कि नहीं मैंने ऐसा ऐसा नहीं, आंटी सॉरी, उसी टाइम पे सबसे पहले तो सॉरी बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, या कुछ घबरा बच्चे जाता है। नहीं बोलते कुछ कुछ बच्चे, बच्चे हाँ नहीं जैसे कुछ बोलते। बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे या तो ऐसा, कुछ बच्चे तो एकदम एग्रेसिव होंगे कि नहीं ऐसा, या कुछ भी हाँ, गलत लैंग्वेज, बट हमें हमारा कामनेस और टोन है ना थोड़ा सा मैनेज करके रखना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं करता है ना, या फिर ऐसा क्यों किया आपने, कुछ कारण है, कुछ स्पेसिफिक है, मतलब आपको उसको डिकोड करना पड़ेगा। एंड वी कांट, बोलते हैं ना कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कई बार, सामने वाला बच्चा कैसा है, बट हम कैन कंट्रोल कर सकते हैं हमारे बच्चे और उसकी फीलिंग्स पे, ठीक है। तो आप हाँ, अपने बच्चे को कह सकते हो कि बेटा ठीक है अपन एक बार घर चलते हैं, या फिर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो बच्चे को उस जोन से हटाना, क्योंकि अगर आप उसी जोन पर रहेगा तो बच्चे को उसी उसी बोलते हैं ना वो सिचुएशन बार बार घूमती रहेगी सर पे। तो आप पहले अपने घर पर ले आइए, कंफर्ट जोन में ले आए, तो बेटा सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं, बट आप क्या कर सकते हैं, आप रोक सकते हो अगले वाले बंदे को। इट्स नॉट अबाउट हिटिंग, यू कैन से नो, क्योंकि यू ये कैन से चीजें नो। ट्रीट करती हैं। अगर आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तो बच्चे को हमेशा एक प्रोटेक्शन लगता है, और दूसरा जो बच्चा है उनको भी लगता है कि ठीक है बच्चा तो वीक है, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, बच्चे वॉन्ट वैल्यू दैट। अपने ही बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो क्लियरली नो बोले, और क्लियरली अगर नो हम बोल डेटिंग करने आ रहे हैं तो होल्ड देयर हैंड्स एंड से नो बाय मेकिंग द आई कांटेक्ट, क्लियर स्ट्रॉन्ग नो, नॉट हिटिंग बैक, नो सो पुलिंग, नो नॉट। फाइटिंग, बट एक क्लियर नो हो जाना जरूरी है, ताकि अगला बच्चा एकदम से रुक जाए, वो शिट कि कुछ भी हो सकता है, यू नो। तो वो चीज हमारे बच्चे को हमको ट्रेन, मतलब जो होता है ना हमारे कंट्रोल में ये चीज है, हम अपने बच्चे को कैसा कर सकते हैं। बट जैसे मैंने बोला कि उस बच्चे से भी कांटेक्ट करना इसलिए जरूरी है ताकि अपने बच्चे को भी लगे कि ओके मेरी मम्मी ने देखा और उन्होंने मेरे हाँ, सपोर्ट किया, ठीक सपोर्ट है, वो किया, समझ राइट। रही। इट्स नॉट अबाउट कि आपको उस ओके। बच्चे को करेक्ट करना है कई बार हमारे कंट्रोल राइट। में नहीं होता।
ऑब्वियसली कंट्रोल में क्या, वो चीज तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। बाय वी विल गो एंड किसी दूसरे के बच्चे को सुधारने का काम हमारा सुधार नहीं नहीं कर सकते, आप है, नहीं कर और सकते। हम कर ही नहीं सकते, वी कांट डू दैट। सो इट्स बेटर टू, आई जस्ट वांटेड टू नो योर ओपिनियन दैट हाउ शुड इन, मतलब एज अ पेरेंट, लाइक मैंने जैसे हैंडल किया जैसे आपने बोला आई हैव हैंडल लाइक दैट। बट होता है अभी जो हमें देख रहे हो हमारी ऑडियंस, उनके साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है एंड दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट इन दैट सिचुएशन। सो दिस क्वेश्चन कम्स अप रिलेटेड टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। करेक्ट करेक्ट, सो मेरे साथ में भी ऐसे ओके ही नाउ, हुआ है। क्योंकि मेरा वाला अच्छा भी ओके, बेबी था, वो जब छोटा था, 1.5 साल का बेबी था, तो ही वाज लाइक, वो हमेशा मार खाता था। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, आपको नो बोलना है ना, नो बोलना है ना। अब क्योंकि अभी बहुत हाँ यहाँ से चीजें समझने में टाइम लगती है, बट वी लगती है। हैव टू डू दिस रिपीटेटिवली। ठीक है। अब वो 2 या 2 मंथ्स का हो गया है, अब वो मार खाता नहीं है, वो एटलीस्ट नो करके चिल्लाता है, बट वो हम्म, वापस से मारने भी लग गया है, क्योंकि बाकी बच्चों से देख हम्म, के तो सीख रहा है। तो देख हम सीख लोग, जाता है, हाँ। हाँ, तो हम लोग उसको उस चीज के लिए भी रोकते हैं। तो ये क्या होता है ना, ये रिपीटेटिव है, आपको रिपीटेटिवली बच्चे को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुम स्ट्रांग हो, तुम इस चीज को हाँ रोक सकते हो, एंड आप स्ट्रांग तब हो जब आप दूसरे को हिट नहीं कर रहे हो। आप नहीं दूसरे को कर हिट रहे करके स्ट्रांग हो। नहीं बनते। ये चीज बच्चों को आप एक बार में नहीं समझा सकते। दे करेक्ट जैसे एज यू मेंशन ना, वी शुड टेल देम repeatedly, yes we should tell them and we should not expect that I have told them this much times and they are not understanding, so this is not like the thing. So you have to may have your patience with telling them like repeatedly that they should, and they should learn eventually, दे not विल डेफिनेटली। at that time, yeah, and they will do that. I करेक्ट। have seen in my child that few things like जो भी मतलब मैं उसे समझाती हूँ ना, नॉट एट दैट टाइम बट ही शोज मी सम साइंस, कभी एक दो दिन बाद या कुछ दिन बाद उसे कहीं से कभी भी याद आ गया तो वो मुझे वो चीज बता देता है, लाइक करेक्ट, उसमें से एग्जैक्टली सेम रिलेट, थिंग। हाँ वो कहीं ना कहीं से वो साइन मुझे शो कर देता है कि दैट यस मैंने उसको ये चीज बताई थी, आई हैव टोल्ड हिम सम डे एंड नाउ ही दिस थिंग हैज बीन रजिस्टर्ड इन हिज माइंड राइट। एंड he is able to recall it. So this thing happened, right? Okay, so next question. What are the common and extreme cases where play therapy has helped? एक्सट्रीम केसेस ऐसे ही हैं, जैसे कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा कोई किसी चीज को सफर कर रहा है, सेल्फ Hmm. आइडेंटिफाई को एक केस होता है, ये भी एक बहुत बड़ा केस होता है कि बच्चे को अपना जेंडर के लिए भी बायस होते हैं, ऐसी चीजें भी होती है। इसके अंदर भी प्ले थेरेपिस्ट हेल्प करता है कि आपकी Okay. इंडिविजुअल आइडेंटिटी को हेल्प करने के लिए, एंड आप जो हो जैसे हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। प्रॉब्लम्स Hmm. तब होती है जब आप बाहर से एक्सपेक्टेशन से, बाहर से अप्रिसिएशन की वो करते हो, नीड रखते हो, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। सेल्फ वर्थ आपको इसमें सिखाया जाता है, चाइल्ड एम्पावरमेंट सिखाया जाता है, आपकी खुद की वैल्यूज आपको सिखाई जाती है कि आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस की वैल्यू है। तो जब बच्चा एम्पावर हो जाता है कि खुद से डील कर सकता है चीजों को, ओके, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब ठीक है ये करूंगा, एंड वो चीज समझ सकता है कि मैं, ये मेरे कंट्रोल में चीजें हैं और ये मेरे कंट्रोल में नहीं। मेरे थॉट्स, मेरे एक्शंस मेरे कंट्रोल में है, बट सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। Right. जब बच्चे इस चीज को एक्सेप्ट करने लग जाता है ना इस प्ले थेरेपी में, तो वो हेल्प करता है उसको लाइफ टाइम के लिए। फिर उसको वो Hmm. दिक्कतें बार बार नहीं आती कि यार मेरे को फिर इधर से प्रॉब्लम हुई, इसने मेरे को ऐसा बोला या ऐसा हो गया मेरे साथ में, वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करेगा। हाँ, प्ले थेरेपिस्ट बाद में भी वापस हेल्प करेगा अगर बच्चे को जरूरत है, तो प्ले थेरेपिस्ट वापस से उसमें हेल्प करता है। बट इसका मेन रोल यही होता है कि बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, एम्पावर करना, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को फिर से रेगुलेट कर सके, समझ सके। तो यहाँ प्ले थेरेपिस्ट हेल्प और जैसे कि आप ये बता रहे हो, मैं एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी कि हाउ कैन पेरेंट्स अंडरस्टैंड दैट माय किड नीड्स दिस प्ले थेरेपी नाउ? हाउ? करता है। जैसे कि अब What are the आपको आपको signs and symptoms they can like observe in their kid to understand that this something is missing, and which you have already mentioned in earlier, but how parents can understand this एक thing? पॉइंट कि अब यार कोई थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी, ये वाला पॉइंट। Hmm. जैसे हम सब अपने बच्चे का बिहेवियर जानते होंगे, डे टू डे रूटीन जानते होंगे, ये करता है ऐसा करता है, हम लोग को स्लाइटली चेंजेस होने लग जाते हैं बच्चे के रूटीन में, तो हम लोग उसको इग्नोर Hmm. करते हैं, हम बोलते हैं चलो बच्चा है, खेल रहा है, बड़ा बड़ा। बट कभी कभी कुछ एक्सट्रीम केसेस आ जाते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया था, टैंट्रम्स हो रहे हैं, क्योंकि टैंट्रम्स Hmm. नॉर्मल है, नेचुरल बच्चों में आते हैं, होने चाहिए, क्योंकि वो उनकी Hmm. बिहेवियर है, वो उसी से उसको समझते हैं। बट थोड़े टाइम बाद में आपको लग Right. रहा है कि बच्चा खुद को हर्ट करने लग गया, कि वो अपना Hmm. हेड वॉल पे हिट कर रहा है जोर से, वो किसी कुछ थ्रो करता है, पहले भी करता था, अब वो थ्रो हम पे करने लगे, पेरेंट्स पे करने लग गया है, हार्म कर रहा है हमको या फिर खुद को। And तो आपको suddenly nature काफी aggressive होता जा रहा है maybe, करेक्ट, और ये कंटिन्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं कि किसी एक which दिन, हाँ which is unusual. एक्टिवली ज्यादा हो गया है। बाइटिंग करना है, वो नॉर्मल होता था, वो और ज्यादा एक्सेसिव हो गया है। ठीक है। या फिर अगर आप थोड़े से और यंगर बच्चों की बात सॉरी टू कट यू हियर, बट आप जैसे बोल रहे हो बाइटिंग करता था, अब बाइटिंग तो एज वी नो इट इज नॉर्मल बिहेवियर, थोड़ा करें, फेज होता है बच्चों का, दे डू दैट, है ना, करेक्ट, उसके आफ्टर सम डेज दे फॉरगेट दिस बाइटिंग वाला थिंग एंड स्टॉप हिटिंग एज वेल मे बी, बट आप जैसे बोल रहे हो कि वो कंटिन्यूअस है, तो कितने दिन में पता चलता है कि मतलब कैसे पता चलेगा कि ये एक्सट्रीम जा रहा है, अब इससे इसका ये लिमिट जो है, बाउंड्री जो है वो क्रॉस हो रहा है? कि हम ही लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।
जब हम लोग को बिल्कुल ही कंट्रोल, यार ये अच्छा। बहुत ज्यादा हो गया है कि हम लोग कंट्रोल ही नहीं, इसका कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है कि 3 दिन हो गया अब ले जाना पड़ेगा, 4 दिन हो गया। इसको जब हमको खुद को रियलाइज हो जाता है कि यार ये बहुत ज्यादा हो गया, अभी हमारे कंट्रोल में ही नहीं आ पा रही चीज। जैसे बाइटिंग हम्म, नॉर्मल है, बच्चे बाइट करते हैं, या फिर हिटिंग नॉर्मल है, हम उसको हाई फाई करके कंट्रोल करते हैं। बाइटिंग में हम लोग उनको स्टॉप करते हैं बाइट करने से, और उसकी जगह हम लोग उसको क्यूकम्बर हो गया, कैरेट हो गया, फ्रोजन फूड्स हो गए जो फ्रीजर में से हाँ, रख करके देते हैं, अगर वो वो टूथिंग देते हैं। वगैरह से रिलेटेड है उसको सूदिंग करने के लिए होता है। तो दो हम्म, केसेस है, एक होता है नेचुरल हो रहा है आपके साथ में, और एक होता है कि कुछ एक इनर प्रॉब्लम है जिसके कारण बच्चा उसको रिपीटेटिवली करे जा रहा है, कुछ इमोशन है ओके। जिसको रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, जिसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण वो बार हम्म, बार किए जा रहा है, तो हमको अपने आप रेड फ्लैग आ जाएगा कि यार ये चीज मैंने ये सब कुछ ट्राई करा फिर भी हेल्प नहीं कर पा रहा बच्चे को। मैं बच्चे को हाई फाई करवा रही हूँ, then we बच्चे need को to सारी seek for a एक्टिविटीज, हाँ मैं सारी एक्टिविटीज therapist. उसको रिलेटेड करा रही हूँ, बट फिर भी बच्चा उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। मैंने इस चीज को एड्रेस करा पर फिर भी बच्चा नहीं समझ पा रहा है, मैंने उसको बाइट करने के लिए क्यूकम्बर, कैरेट और सब कुछ दिया, बट सब फिर भी कुछ है। अभी कुछ दिन हो गया है, इतना टाइम हो गया है, अब दिखाना पड़ेगा। मतलब कुछ भी आपको अगर आप कर रहे हो और प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं दिख रही है, तो आप उसको थेरेपिस्ट के पास दिखा सकते हैं। Next question is, okay, I think we should take now these questions which our audience has sent. So this is Ashika, and her first question is how to introduce independent play. And then she said she becomes very short tempered. She doesn't want to play with my mother in law, and she only wants me all the time. Okay. And एज then कैसे? sometimes I think age इसकी 2 है, maybe हाँ 2 around 2 है, yes. Sometimes when I'm unable to give her time or when I'm busy with my household chores, तो उस time पे how can she introduce independent play or develop इंडिपेंडेंट प्ले that में, skill? इंडिपेंडेंट प्ले की अगर आप एग्जैक्ट बात करो तो बच्चों के साथ में टाइम लगता है, कुछ बच्चे इंडिपेंडेंट प्ले बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। 2.5, she is saying 2.5 2.5, years. ओके, मेरे बच्चे से हाँ, एज बराबर ही है अराउंड। तो ये क्या है, हाँ, बहुत यंग है इंडिपेंडेंटली खेलने के लिए, ठीक है, तो हम्म, कहीं ना कहीं उनको हमारी जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा प्ले नहीं, उनको क्या अटेंशन चाहिए होता है कि कोई ना कोई right, हमारे साथ है, राइट, तो इस टाइम पे साथ उनको बहुत ज्यादा क्लोजनेस चाहिए होती है। तो हम ये हम्म, बहुत यंग एज है कि आप उनको सोचो कि यार इंडिपेंडेंटली खेल लेंगे, ठीक है, वो हम्म, तब खेलेंगे जब उनको खुद को लगेगा, वी खुद को कैन प्रिपेयर लगेगा, देम फॉर दैट, ठीक है, बिकॉज अगर वो गुस्सा कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ टेंट्रम दिखा रहे हैं आपके लिए, तो टेंट्रम नहीं हम्म, है, वो जस्ट आपको चाहते हैं इस टाइम पे आप उनके साथ रहो, बिकॉज उनको नहीं पता हमारे पास कितना सारा काम है, हम कहाँ बिजी हैं, हमारे पास हमारा रूटीन शेड्यूल, उनको कुछ नहीं पता, उनको मतलब भी नहीं है, दे वांट अस टू बी देम फिजिकली मेंटली प्रेजेंट, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हो तो 5 मिनट दो, अपने बच्चे के साथ बैठो, कनेक्ट करो, उसको इन्वॉल्व करो, और जैसे उन्होंने बोला कि ग्रैंड मदर के साथ में नहीं खेलते हैं, तो ग्रैंड मदर के साथ में भी बैठो, 5 मिनट दो कि यार बच्चा समझ ले कि ओके मम्मा ट्राई करिए, हाँ, मम्मा भी हाँ, 5 मिनट में आ जाएगी, ठीक है, एंड वापस आप 5 मिनट में जाओ बच्चे के पास में देखने के लिए कि सब ठीक है, ठीक है, और ये right, मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैंने अभी करा और मेरा बच्चा भी समझ गया, रिपीटेटिवली वापस से वही नहीं करेगा, repetitive, रिपीटेटिवली बच्चे को वो पैटर्न पता चलना चाहिए कि यार मम्मा ने बोला था इतनी देर में आ जाएंगे, तो मम्मा इतनी देर में आ गए हैं, आ रहे ट्रस्ट हैं। भी आता है, तो ये इससे ये क्या होगा। होता है। हाँ, हाँ, मेरा बेटा भी लाइक ही इज नाउ 3.5, बट स्टिल वो यहाँ पे जैसे मैं उसको सैंड प्ले भी देखे जाते हैं ना, इफ आई गिव हिम द वाटर प्ले और सैंड प्ले, तो वो मुझे कंटिन्यूअसली थोड़ी थोड़ी देर में बुलाता रहेगा। एंड इफ जो बिल्डिंग के बच्चे हैं वो भी अगर खेलने आ जाते हैं, दे हाँ, आर प्लेइंग विद हिम, then still he wants me to करेक्ट, come and see him that what he is doing, what the other kids are doing, तो वो चाहता है कि मैं उसके साथ में रहूं। राइट, तो बच्चों का अभी आपने जैसे कहा ना कि इंडिपेंडेंट प्ले इतने छोटे बच्चों का नहीं है पॉसिबल, दे नीड योर अटेंशन बेसिकली। पता है ना ये Right. बहुत So छोटे we होते have हैं। another question. Yeah, एक yeah, yeah. चीज Please ये start. कह रही थी कि जैसे इसमें नहीं बहुत कम एज रहती है जिसमें बच्चों को हमारी अटेंशन चाहिए, तो पॉसिबल हो हम्म, तो जितना अटेंशन दे सको दो, बिकॉज जी, एक टाइम बाद में वो लोग स्कूल जाएंगे और बड़े होंगे, दे एक्चुअली फिर डोंट आप ये नीड, मिस करोगे। फिर हम लोग फिर आप बहुत ये मिस मिस करेंगे यार, करोगे। थोड़ा सा खेल ले, थोड़ा सा एक हक दे दे, किस दे दे, कितना टाइम हो गया, बिकॉज दिस इज अ हम्म, वेरी यंग एज एंड दे डोंट नो हाउ टू प्ले इंडिपेंडेंटली, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, तो राइट, उनको ये जो टाइम है ना, थोड़ा सा जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपका डे टू डे टाइम आपका हमेशा रहेगा, बच्चा आपका स्कूल जाएगा, सब कुछ करेगा, हमेशा आपका डे टू टाइम वो जो रहेगा, बट ये जो बच्चा बड़ा हो रहा है ना, ये वापस नहीं आएगा। तो ब्रेक लो, 5 मिनट में आ रहे हो, 5 मिनट में आओ वापस से, जैसे वो बच्चा आपके लिए क्रेविंग कर रहा है, आप भी उसके लिए क्रेविंग करो, एंड बार बार रहो, एक हाथ दो, एक किस दो, बच्चे को कंफर्ट मिलना चाहिए, वो अपने आप आपकी बात आई समझ नो। जाए। मतलब फैमिलीज के साथ जो मतलब रहते हैं ना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बिल्कुल उन्हें होता है। हाउस होल्ड चोर्स भी पूरा कंप्लीट करना है, आई नो बिकॉज मैम, मैं दे पूरा डोंट फैमिली वांट। के साथ में रहती हाँ, हूँ, तो मुझे हाँ, पता है दे ये डोंट चीज। वांट कि करेक्ट, दूसरे लोग भी कुछ बोले, है ना, फैमिली करेक्ट, मेंबर्स आपको कुछ बोले, तो करेक्ट, ये थोड़ा मदर्स के लिए हो जाता है, वी बिल्कुल होता अंडरस्टैंड, है। बट आप अपने काम से थोड़ा थोड़ा सा टाइम, जैसे अर्चना ने बोला ना, आशिका, आप 5 5 मिनट्स के गैप में या 10 10 मिनट्स के गैप में आके बस उसको एक हाय हेलो घूमते फिरते कहते जाओगे ना, एंड शील बी ओके, बस, वो बहुत खेलती रहेगी। बच्चे को हाँ, थोड़े टाइम बाद में आपको ड्यूरेशन आराम से बोले कि यार मैं 1 2 घंटे बाद में बाहर जा रही हूँ, आ जाऊंगी, बच्चा रुक जाएगा, बच्चा वेट करेगा, अदरवाइज अभी जिस हिसाब से अगर भागोगे तो 5 मिनट वेट नहीं करेगा बच्चा, बट वही है, राइट। रिपीटेटिव रिपीटेटिव करेगा बच्चा, हेल्प, बच्चा समझने लग जाता है। Okay, so next question is from Sai Lakshmi. ये कह रहे my 2.5 years daughter is stubborn and shouts for everything. How to control? And one more question. Hmm,
My 2.5 daughter doesn't allow my 7-year-old son to sit and hug and enjoy with me. How to explain it? We can't That's a explain nice it, question. sorry. We actually can't explain that because they are too young to understand. Their conscious mind is not it. But yes, the same thing, repetitively, आप धीरे धीरे बताते जाओ, धीरे धीरे बच्चा समझ जाएगा. It's all, they are not disturbing us or others, they just want attention. Yeah, and Sahil, actually, what you can do now, uh, like when your 2.5-year daughter is sleeping or away with some other member, your family member, then you can spend time with your son. So because I know spending time with your 7-year-old is very much important. He also needs you. So you have to like segregate your time and give your at least 20 minutes पूरे long day में आप अपने दोनों बच्चों को individually भी दोगे ना, तो इतना attention भी उनके लिए sufficient है. It will be sufficient for them. और क्या होता है ना, Yeah. 7 ईयर का बच्चा है ना, वो थोड़ा सा चीजें समझता है, तो हम लोगों को लगता है कि यार ये समझ जाना चाहिए, वैसा नहीं रखे हम लोग उसको जरूर बताएं कि हाँ ठीक है, हम थोड़ा सा इसके साथ में भी टाइम दे रहे हैं, बट यू आर इम्पोर्टेंट टू एंड इक्वली इम्पोर्टेंट. ठीक है. Because the 7-year also craves for mother's attention. करेक्ट करेक्ट, तो They उसको आप are बड़ा not नहीं doing बना सकते. anything to, they are not doing anything to like bother you or बिल्कुल मतलब बिल्कुल. intentionally वो आपको कुछ hurt करने के लिए परेशान करने के लिए वो बच्चा भी नहीं कर रहा है. राइट They राइट. just they are craving, that 7-year-old is craving for your attention. So that is why I'm telling you to give 20 minutes or 15 minutes if you have. Just give him separate time, 15 minutes ka, and ask other family members to hold your 2.5-year daughter, and then spend 15 to 20 minutes with your 7-year-old. Focusly with him only, without any distraction. Just करेक्ट keep your करेक्ट. household chores away, keep your phone away, keep your any distractions you have in that room. Just to keep them away and spend that 15 to 20 minutes with your older one. Yeah. करेक्ट करेक्ट. And next question. एक और भी था हमारे पास क्वेश्चन. आई डोंट नो, आई थिंक वो स्क्रॉल अप हो गया है. दैट इज माय व्हाई आई आस्क. my 1.5 year son won't sleep. He won't. हाँ. My When? At 2.5 what year son time? won't sleep. It takes time At to what set time he that won't pattern. sleep? It takes time He's, to set that pattern, and it takes time because अब बच्चा क्या इमोशनली बहुत चीजें डील कर रहा है, मेंटली बहुत चीजें डील कर रहा है. अब वो 1.5 ईयर हो गया, 1 ईयर के बाद में उसके और माइलस्टोन्स हो रहे हैं, वो चलेगा, उसके सॉलिड्स वगैरह वो ज्यादा उसको क्रेविंग करेगा, तो चीजें जब बदलेगी, बच्चा खेलता ज्यादा है इस टाइम पर, अब तो उसका स्लीप पैटर्न बदलेगा. माइंड उनका इस टाइम पे बहुत एक्टिव हो जाता है. करेक्ट एंड करेक्ट. हम लोग को जितना लगता है ना कि वाई दे आर एवरीथिंग जंपिंग एंड गोइंग रनिंग हियर एंड देयर, बिकॉज ऑफ दैट ऑब्वियसली. एंड ही इज अ बॉय, तो बॉयज का तो माइंड अलग ही लेवल पे, उनकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो वो अलग ही भागना इधर उधर करना करते रहते हैं. करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट. आपको मतलब इफ यू वांट यू कैन सेट अ रूटीन फॉर देम, फॉर योर सन, बट या इट विल टेक टाइम. या इट विल टेक टाइम. या. रूटीन आप लोग स्ट्रिक्ट रहो अपने रूटीन के साथ में, धीरे धीरे बच्चा हैंडल करेगा, बट वो फिर भी स्टिल देयर आर चांसेस, बिकॉज वो चेंज होते रहेंगे कभी कभी ड्यू टू मेनी रीजन. नहीं. एनवायरमेंटल होता है, बच्चों का फूड होता है, हाँ. इमोशनल होता है, बहुत चीजें होती हैं. किड्स नीड्स रूटीन टू लाइक फंक्शन. उनको करेक्ट. बच्चों को चाहिए है कि एक सेट रूटीन होना चाहिए उनका, सो दैट दे कैन फंक्शन, दे कैन दे subconsciously knows that what is about to come next. Like this is my, if this is my meal time, then what is at what is coming next. When is the play time, when is the sleep time. So उनका एक के बाद एक रूटीन अगर सेट होता है ना, ये नहीं कि किसी टाइम अगर आपने 12:30 आज उनको मील दिया है तो आप उसको नेक्स्ट दे रहे हो 1:30 पे. अगर आज आप उनको मतलब नाइट का स्लीप टाइम उनका 8 है और एक दिन उनको 10 सुला दिया, फिर 8 सुला दिया, तो इस तरह से ना दिस विल नॉट वर्क फॉर इट. यू हैव टू मेंटेन दैट ये रिदम. पता है क्या चीज, एक मैं बोलती हूँ ना कि हमको लगता है कि बच्चा ये नहीं कर रहा, बच्चा ये नहीं कर रहा. आपको बच्चे को क्या कराना है ना, आपको करना पड़ेगा, आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा. बच्चा देखता है एंड दे इमिटेट. हमको रूटीन हमारा सेट करना पड़ेगा, बिकॉज बच्चे को हम 8 बजे सुला रहे हैं, घर में पूरा शोर है, सब कुछ है, बच्चा क्यों सोएगा, बच्चे को लग रहा है कुछ चल रहा है, वो नहीं सोएगा. तो वी हैव टू सेट सबसे आवर रूटीन. इम्पोर्टेंट वी एज अ पेरेंट नीड टू सेट अ रूटीन फॉर आवरसेल्व्स. और अगर आप अपना नहीं भी सेट कर सकते तो बच्चे को इतना सेट करके रखो कि आपका अपने आप सेट हो जाएगा. करेक्ट, ये वही भी है. बात है, सेम होना चाहिए. सिंपल सा बट एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो. इफ यू वांट टू लाइक रिड्यूस द स्क्रीन टाइम फॉर योर चाइल्ड, यू हैव टू कीप योर फोन एंड टीवीज अवे. If you want to reduce the, मतलब this is the best thing you can do. दिस इज द सबसे बिगेस्ट थिंग. important चीज है. या. मेरे बच्चा फुल टाइम या. स्क्रीन पे है, सो इट इज इन योर हैंड्स कि हाउ टू, मतलब वो चीज है कि अगर हमने अपना स्क्रीन बंद कर दिया, हम लोग उसके सामने स्क्रीन नहीं देख रहे हैं, बच्चा वोंट क्रेव फॉर दैट. बच्चे को एंटरटेनमेंट Right. चाहिए, उसका एंगेज होना चाहिए, उसको आप सिर्फ किसी और चीज में एंगेज करो, अपने आप बच्चा एंगेज हो जाता है. Right. Okay. So guys, do you have any more questions? You can still ask. We have 5 minutes, and otherwise, you guys can also drop us DM for the sensory activities ebook, and we'll send you directly on your inboxes. I'm looking for 4 more questions if we get some.
आई डोंट थिंक अभी कोई और क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आपको कोई हाँ मैं स्क्रॉल ऐड कर रही करना है, इफ यू वांट टू ऐड, हाँ, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इन दिस टॉपिक, तो अभी आप, वी हैव अभी 4-5 minutes, वी कैन डू दैट। हूँ। मैं आई वुड लाइक टू ऐड कि हम सब लोग बहुत वरी करते हैं हमारे बच्चे को कैसा फ्रेम करना है, ऐसा फ्रेम करना है, ये करना है। सिंपली छोड़ दो बच्चे को। पता है जब आप बच्चे को छोड़ देते हो ना कि बच्चों को क्या खेलना है, कैसे करना है, क्या करना है, लेट देम लीड देयर लाइफ, कि लेट देम लीड देयर प्ले। ठीक है, जो बच्चा खेलना चाहता है, जैसे खेलना चाहता है खेले। आप नो डोंट का यूज सिर्फ तब करो जब बच्चा खुद को हर्ट कर सकता है या किसी को हर्ट कर सकता है या कुछ सामान का नुकसान कर सकता है। मोस्ट ऑफ द राइट। टाइम हम पेरेंट्स नो इसलिए करते हैं क्योंकि हम हमारे लिए है ना काम बढ़ जाएगा लगता है। मुझे यार अब सबसे काम ज्यादा था ये होता है कि हमें लगता है कि यार अब बस बहुत हो गया, ये अब सब हमें नहीं नहीं करना। बंद होगा। तो बच्चा है, हाँ, हमारी एनर्जी बच्चे की एनर्जी में डिफरेंस है। वर्क ऑन योर सेल्फ, डू योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, कि आप अपनी एनर्जी को बच्चे की एनर्जी से मैच कर सको, ना कि नेचुरल, बच्चे की टेक एनर्जी को टेक कम करो। टाइम फॉर योरसेल्फ। अच्छा, आपने बहुत अच्छी चीज बोली अर्चना। आई सी कि मदर्स आर टू बिजी इन हाउस होल्ड चोर्स, इन किड्स चोर्स, कि वो अपने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, वो इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मतलब जब मैं अब तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत करने लगी, बट आई वॉज नो हेल्प एट होम व्हेन माई किड वॉज टू यंग। तो मुझे भी नहीं मिलता था टाइम। बट ग्रेजुअली एंड स्लोली स्लोली व्हेन आई फाइंड दैट हाँ, अभी नाउ माई सन इज डूइंग फाइन, तो मैंने धीरे धीरे अपने लिए भी टाइम निकालना स्टार्ट किया, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर नाउ। कि हाँ, अब मैं जो करना चाहती हूँ, कैसे कैसे मैं मूव होके अब इधर आई हूँ, ये अपना सोशल मीडिया हैंडल कर पा रही हूँ, और जो भी मतलब मैं नेक्स्ट अभी प्लानिंग चल रही है उस पर वर्क कर पा रही हूँ। तो दिस इज वाई, बिकॉज आई ट्राई टू टेक टाइम फॉर माई सेल्फ। सो बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी चीज बोली है, एंड आई ऑल्सो इस वॉन्ट टू बुक को टेल मॉम बनने के मदर्स बाद कि से आप खुद अपने लिए टाइम निकालें। करेक्ट। इट इज वेरी, इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर किड्स, योर फैमिली, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आपकी नीड्स। हाँ, मतलब पता है क्या है ना, इवन फर्स्ट वर्किंग मॉम्स थिंग। के लिए भी मैं कहूंगी कि वर्किंग मॉम्स भी बेचारी ऐसी हो गई कि फुल टाइम वर्क भी करें, फुल टाइम बच्चे को भी देखना, सब कुछ सच। देखना है, आप एग्जॉस्ट हो गए बिकॉज ये नेचुरल है। यू हैव Just टू take टेक 10 टाइम minutes फॉर for योरसेल्फ। yourself. Like मेडिटेशन कर Archana लो, said, कुछ भी। meditation कर लो, yoga कर लो, 5-10 minutes are sufficient. Also, take care of your diet. अपना आप eat healthy, Exactly. eat nice, and fiber and protein rich diet, so that you will feel more energetic. Yeah. Correct, अच्छा, correct. last question I have found it. This is from Swali Twins. Till what age free play is a good हाँ, idea? हाँ, ये इनका वही फर्स्ट क्वेश्चन था, शायद वही चीज है। प्ली हाँ, जो फ्री प्ले होता है वो आपका 12-13 ईयर्स तक फ्री प्ले आपका चलता है आराम से। एंड उसके बाद में भी कई बच्चों पे ये वर्क करता है, इवन अडल्ट्स के लिए भी काम करता है। तो स्पेसिफिक एज नहीं है। हम स्पेसिफिक एज ये बोल सकते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वो 3 ईयर्स से स्टार्ट होता है। सो दैट बच्चा अपने आप को थोड़ा बहुत 3 ईयर्स मिनिमम हम लोग रखते हैं इन प्ले थेरेपी में, ताकि बच्चा अकेले रुक सके थोड़ा टाइम के लिए और खेल सके। बिकॉज उससे छोटे जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली अकेले नहीं रुक सकते हैं, बहुत यंग होते हैं कि बच्चा अकेले वहाँ पर नहीं रुक सकता, और उसका ऐसा कुछ बिहेवियर जिससे आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। वो आप घर पे ही आपको करना पड़ता है, आप किसी के साथ में अकेला बच्चे को नहीं छोड़ सकते। तो right. आपको भी एक मिनिमम एज है, बट मैक्सिमम एज ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, डिपेंड बच्चा टू बच्चा। Bacha to bacha, right, right. Right. Okay, so it was very nice conversation with you, Archana. I really wanted to know about the play therapy, and I had so many questions, and I think हम लोग ने अभी मेरे कुछ questions है जो रह गए हैं, and हम ड्रॉप इसके लिए करना दूसरा फिर सेशन प्लान करेंगे। वापस कर लेंगे। हाँ, एक बिकॉज दूसरा अगर और सेशन प्लान क्वेश्चंस करेंगे आएंगे तो, और भी हाँ, अगर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन सबको वापस से एक और सेशन नेक्स्ट पार्ट 2 करके फिर से हम लोग कवर कर पार्ट टू, सकते हैं। बिकॉज डेफिनेटली डेफिनेटली। प्ले थेरेपी तो बहुत बड़ा है, तो आप बहुत चीजें कवर राइट। कर सकते So guys, if you guys still have some questions ना, तो अभी ये वाली वीडियो मैं जब शेयर कर दूंगी, आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर देना। we'll take it and we'll plan another part 2 of this play therapy section. It was really fun talking to you, Archana, and हैं। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक सारे यू फॉर हैविंग insights मी। मिले। थैंक यू बहुत फॉर सारे हैविंग मी। insights मिले, और मुझे बहुत मजा आई, तो मीन्स ट्रूली सेइंग बहुत मजा आई, बहुत इट्स अ सारी लॉट टू अच्छी मी। बातें मुझे। हाँ। थैंक Okay यू। guys, thank you so much, Archana, for joining me. Yeah. थैंक Okay यू। guys, bye. बाय बाय, टेक केयर। Bye everyone.